क्या आपको भी इंग्लिश ग्रामर में हैज़ और हैव के अलग-अलग इस्तेमाल को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है? Many times students get confused about when to use it for eating and drinking and when to use it for showing ownership or possessions. Hello everyone, मैं हूँ शिविका, आपकी English partner. And today in this special class, your entire confusion about has and have is going to vanish forever. आज हम ट्रेडिशनल तरीके से कोई बोरिंग रूल्स नहीं रटेंगे, बल्कि सीधे स्क्रीन पर देखकर, बोल कर इसकी लाइव प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट, आई विल स्पीक द सेंटेंस इन हिंदी and right after that, you have to repeat the English translation with full confidence. So, without wasting a single second, let's jump straight into the class and start our solid practice. Let's start with our first rule, जहां हम खाने पीने के लिए have या had का इस्तेमाल सीखेंगे। Listen carefully and repeat after me. मैं रोज सुबह एक कप गर्मा गर्म कॉफी पीती हूँ। I have a cup of hot coffee every morning. मैं दोपहर में अपना लंच समय पर लेती हूँ। I have my lunch on time in the afternoon. मैंने कल रात को ठंडी आइसक्रीम खाई थी। I had cold ice cream last night. मैंने शाम को थोड़े फल खाए थे। I had some fruits in the evening. मैंने कल सुबह अपना नाश्ता बहुत जल्दी किया था। I had my breakfast very early yesterday morning. मैं थोड़ी देर में अपना जूस लूंगी। I will have my juice in a while. मैं रात को सोने से पहले दूध लूंगी। I will have milk before going to bed. मैं इस वक्त अपना रात का खाना खा रही हूँ। I am having my dinner right now. वो दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। He is having a cold drink with friends. मैंने अपना दोपहर का खाना खा लिया है। I have had my lunch. उसने अपना नाश्ता कर लिया है। She has had her breakfast. मैंने गर्मा गर्म सूप ले लिया है। I have had hot soup. मेरे पापा ने अपनी चाय ले ली है। My father has had his tea. मैंने आज बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई खाई है। I have had a very delicious sweet today. उसने आज एक नया फ्लेवर चखा है। He has had a new flavor today. मेरे पास एक नया लैपटॉप है। I have a new laptop. मेरे पास पालतू कुत्ता नहीं है। I don't have a pet dog. क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? Do you have an extra pen? क्या आपके पास हेलमेट नहीं है? Don't you have a helmet? मेरे पास कुछ जरूरी काम है। I have some urgent work. मेरे पास इस वक्त छुट्टियां नहीं हैं। I don't have holidays right now. क्या आपके पास बैंक अकाउंट है? Do you have a bank account? क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? Don't you have a driving license? मेरे पापा के पास एक बड़ा ऑफिस है। My father has a big office. मेरे पापा के पास सरकारी नौकरी नहीं है। My father does not have a government job. क्या आपके पापा के पास खुद का बिजनेस है? Does your father have his own business? क्या आपके पापा के पास नया फोन नहीं है? Doesn't your father have a new phone? मेरे पास कई सारे आइडियाज हैं। I have many ideas. मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। I don't have any complaints. आगे बढ़ने से पहले let's take just 1 minute to understand the logic behind has and have, ताकि आपको इन्हें रटना ना पड़े और आप खुद से नए sentences बना सकें। Remember, we use has
and have in 3 totally different situations. Situation 1. Ownership/possession. जब कोई चीज आपके पास होती है, फॉर एग्जाम्पल, I have a laptop या he has a car. Situation 2. Food or drinks. Nowadays, saying eat or drink sounds very old-fashioned. Modern English में हम इनकी जगह have बोलते हैं. Like, I am having my coffee. मैं कॉफी पी रही हूँ. और अगर आप खा या पी चुके हैं, तो कहिए have had. जैसे, I have had my lunch. मैं लंच कर चुकी हूँ. Situation 3. Completed actions. जब कोई काम बिल्कुल अभी खत्म हुआ हो, तब हम has/have के साथ verb की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. For example, I have uploaded the video. Now, the easiest trick to remember: where to use has and where to use have. जब भी बात एक से ज्यादा लोगों की हो, I, you, we, they, तो आंख बंद करके have लगाइए. And whenever time we talk about a single person or object, he, she, it, or any name like Sammy, Ankit, तो वहां हमेशा has आएगा. See, it's that simple. No cramming needed. चलिए, इसी समझ के साथ शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर. Great job! Now, let's see how to talk about our skills, responsibilities और possessions. स्क्रीन पर देखिए और मेरे बाद दोहराइए. क्या आपके पास रहने के लिए घर है? Do you have a house to live in? क्या आपके पास थोड़ा समय नहीं है? Don't you have a little time? मेरे भाई के पास एक अच्छी जॉब है. My brother has a good job. मेरे भाई के पास अभी बाइक नहीं है. My brother doesn't have a bike right now. क्या आपके भाई के पास नया कंप्यूटर है? Does your brother have a new computer? क्या आपके भाई के पास कोई हुनर नहीं है? Doesn't your brother have any skill? मेरे पास इस विषय की पूरी जानकारी है. I have complete information about this topic. उसके पास गाने का बहुत अच्छा टैलेंट है. She has a great talent for singing. उसके पास बात करने की तमीज नहीं है. She doesn't have manners to talk. क्या उसके पास इस काम का कोई अनुभव है? Does she have any experience for this work? क्या उसके पास तुम्हारा कोई फोटो नहीं है? Doesn't she have any photo of yours? मेरे पास इंस्टाग्राम पर अच्छे दोस्त हैं. I have good friends on Instagram. मेरे भाई के पास YouTube पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं. My brother has a lot of subscribers on YouTube. मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है. I don't have any secret. मेरे भाई के पास इस वक्त पैसे नहीं हैं. My brother doesn't have money right now. क्या तुम्हारे पास कोई नया चुनशे प्लान है? Do you have any new plan? क्या आपके भाई के पास पासपोर्ट है? Does your brother have a passport? क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? Don't you have any other option? क्या आपके भाई के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है? Doesn't your brother have any responsibility? मेरे पापा के पास बहुत धैर्य है. My father has a lot of patience. सैमी के पास बहुत अच्छा दिमाग है. Sammy has a very sharp mind. मेरे पास इस काम के लिए हिम्मत नहीं है. I don't have the courage for this task. सैमी के पास बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है. Sammy doesn't have the confidence to speak. मेरे पापा के पास बिल्कुल भी फालतू समय नहीं है. My father does not have any spare time. तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है. You don't have any excuse. हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है.
वी डोंट हैव अ प्लेस टू स्टे. उनके पास हमारे लिए कोई समय नहीं है. दे डोंट हैव एनी टाइम फॉर अस. मेरे भाई के पास कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है. माई ब्रदर डजंट हैव एनी न्यू प्रोजेक्ट. मेरी सिस्टर के पास कोई स्कूटी नहीं है. माई सिस्टर डजंट हैव एनी स्कूटी. उसके पास कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है. शी डजंट हैव एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट. अंकित के पास कोई फालतू पैसे नहीं है. अंकित डजंट हैव एनी एक्स्ट्रा मनी. अंकिता के पास कोई नया ड्रेस नहीं है. अंकिता डजंट हैव एनी न्यू ड्रेस. मेरे पास एक महंगी घड़ी है. आई हैव एन एक्सपेंसिव वॉच. मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं है. आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा टिकट. क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर है? डू यू हैव माई नंबर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. जब कोई काम हाल ही में पूरा हो चुका हो तो हम हैज स्लैश हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. लुक एट द स्क्रीन. क्या तुम्हारे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है? डोंट यू हैव एनी ईमेल आईडी? मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट. मैंने ये नया कोर्स ज्वाइन कर लिया है. आई हैव जॉइंड दिस न्यू कोर्स. मैंने एक नई रील अपलोड कर दी है. आई हैव अपलोडेड अ न्यू रील. मैंने वो पीडीएफ डाउनलोड कर ली है. आई हैव डाउनलोडेड दैट पीडीएफ. मैंने मैनेजर से शिकायत कर दी है. आई हैव कंप्लेन्ड टू द मैनेजर. मैंने आज सुबह कसरत कर ली है. आई हैव डन एक्सरसाइज दिस मॉर्निंग. उसने खाना बना लिया है. शी हैज कुक्ड द फूड. हमने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है. वी हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन. उन्होंने मैच जीत लिया है. दे हैव वन द मैच. मेरी सिस्टर ने नया बिजनेस शुरू किया है. माई सिस्टर हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस. मैंने रात का खाना तैयार कर दिया है. आई हैव प्रिपेयर्ड द डिनर. मम्मा ने अभी तक कपड़े नहीं धोए हैं. मॉम हैजंट वॉश्ड द क्लोथ्स येट. उसने पुलिस में शिकायत कर दी है. शी हैज कंप्लेन्ड टू द पुलिस. मैंने अपनी कार पार्किंग में खड़ी कर दी है. आई हैव पार्क्ड माई कार इन द पार्किंग. मेरे भाई ने कमरे का ताला लगा दिया है. माई ब्रदर हैज लॉक्ड द रूम. मैंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है. आई हैव सेलिब्रेटेड माई एनिवर्सरी. सैमी ने परीक्षा पास कर ली है. सैमी हैज पास्ड द एग्जाम. मैंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. आई हैव मेड अ न्यू रिकॉर्ड. रोहित ने मैच में बहुत अच्छा खेला है. रोहित हैज प्लेड वेरी वेल इन द मैच. मेरी सिस्टर ने ये वेब सीरीज देख ली है. माई सिस्टर हैज वॉच्ड दिस वेब सीरीज. मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है. आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज. तुमने अपना वादा पूरा किया है. यू हैव फुलफिल्ड योर प्रॉमिस. हमने टिकट बुक कर ली है. वी हैव बुक्ड द टिकट्स. उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है. दे हैव एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन. सैमी ने नया फोन खरीदा है. सैमी हैज बॉट अ न्यू फोन. मेरे भाई ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है. माई ब्रदर हैज टेकन एडमिशन इन कॉलेज. मेरी सिस्टर ने नया गाना रिकॉर्ड किया है. माई सिस्टर हैज रिकॉर्डेड अ न्यू सॉन्ग. उसने ऑफिस से इस्तीफा दे दिया है. ही हैज रिजाइंड फ्रॉम द ऑफिस. उसने अपनी गलती मान ली है. शी हैज एक्सेप्टेड हर मिस्टेक. मैंने ताज़ा तरबूज का जूस पी लिया है. आई हैव हैड
फ्रेश वाटरमेलन जूस। मैंने एक गिलास गुनगुना पानी पी लिया है। आई हैव हैड अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। मेरे पापा ने अपनी चाय खत्म कर ली है। माई फादर हैज हैड हिज टी। उसने सुबह की दवाइयाँ ले ली हैं। ही हैज हैड हिज मॉर्निंग मेडिसिन्स। मैंने आज सुबह स्कूटी चलाई है। आई हैव ड्रिवन द स्कूटी दिस मॉर्निंग। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। पूरे जोश के साथ दोहराइए। मैंने आज एक नई साइकिल चलाई है। आई हैव रिडन अ न्यू बाइसिकल टुडे। मेरे दोस्त की शादी हो गई है। माई फ्रेंड हैज गॉट मैरिड। मैंने नया म्यूजियम देखा है। आई हैव सीन द न्यू म्यूजियम। मैं डॉक्टर से मिल चुकी हूँ। आई हैव मेट द डॉक्टर। उसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया है। ही हैज मैसेज्ड मी ऑन व्हाट्सएप। उसने मुझे ईमेल भेजा है। ही हैज सेंट मी एन ईमेल। उसने मुझे मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया है। ही हैज इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द मीटिंग। आपके भाई ने मेरी मदद की है। योर ब्रदर हैज हेल्प्ड मी। तुम्हारी मम्मा बाजार गई हैं। योर मॉम हैज गॉन टू द मार्केट। तुम्हारा भाई रेस जीत गया है। योर ब्रदर हैज वन द रेस। तुम्हारी सिस्टर विदेश चली गई है। योर सिस्टर हैज गॉन अब्रॉड। हमारे नए सर ने हमें पढ़ाया है। आवर न्यू सर हैज टॉट अस। मैम ने आज क्लास में बहुत अच्छा समझाया है। मैम हैज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल इन द क्लास टुडे। तुम्हारे दोस्त ने मेरा पेन खो दिया है। योर फ्रेंड हैज लॉस्ट माई पेन। मैंने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया है। आई हैवंट टोल्ड हिम एनीथिंग अबाउट दिस। मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा है। आई हैवंट सेंट एनी मैसेज। उसने मुझे घर पर ड्रॉप नहीं किया है। ही हैजंट ड्रॉप्ड मी एट होम। उसने मुझे इस बदलाव के बारे में नहीं बताया है। ही हैजंट इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दिस चेंज। मेरे पापा ने नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। माई फादर हैजंट परचेस्ड एनी न्यू प्रॉपर्टी। सो यू सी, बिना किसी भारी भरकम ग्रामर रूल्स को रटे सिर्फ मेरे साथ स्क्रीन पर देखकर बोल बोल कर प्रैक्टिस करने से ये कॉन्सेप्ट कितना आसान हो जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क टेस्ट। मान लीजिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इंग्लिश में लिखना है, मेरे पास एक नया लैपटॉप है और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। तो आज सीखे गए नियमों के हिसाब से इसका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? अपना जवाब बिना भूले तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आई विल पर्सनली चेक योर आंसर्स। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, डू इट राइट नाउ, ताकि आप आगे आने वाली ऐसी ही कड़क वीडियोस बिल्कुल मिस ना करें। See you in our next class. All the best. Keep learning, keep growing.